السلام علیکم 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہوش نثار اور میں ہوں دانش حسین۔ حکومت کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کے ساتھ تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے خلاف عدالتی جنگ لڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ تحریک انصاف آج وزیر اعظم کی رہائش کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گی۔ تحریک انصاف کے قانونی ماہرین حامد خان اور نعیم بخاری پٹیشن دائر کریں گے، جس میں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو بنیاد بنا کر عدالت عظمیٰ سے استدعا کی جائے گی کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں بھی وزیر اعظم کی نااہلی کے لیے ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے امجد بھٹی سے۔ امجد، بتائیے گا وزیر اعظم کی نااہلی کی درخواست کے بارے میں تحریک انصاف کے کتنے رہنما پر امید ہیں؟ جی بالکل مہوش، پاناما لیکس سے متعلق جو سپریم کورٹ میں آج پی ٹی آئی کی جانب سے آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم جو کہ سینئر وکیل حامد خان اور نعیم بخاری پر مشتمل ہے، وہ اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ میں آئیں گے اور پاناما لیکس سے متعلق آئینی پٹیشن جو ہے وہ فائل کریں گے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے صبح 9 بجے کا اعلان کیا گیا تھا، بعد میں ٹائم تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 12:30 بجے کا وقت میڈیا کو بتایا گیا ہے، جس میں پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ یہاں پر سپریم کورٹ میں آئے گی اور پاناما لیکس سے متعلق جو ہے وہ آئینی پٹیشن دائر کرے گی۔ ہم نے جو 24 نیوز نے جو اس پٹیشن کے مندرجات جو ہے وہ ذرائع سے حاصل کیے ہیں، اس کے مطابق یہ جو آئینی درخواست پاناما لیکس سے متعلق دائر کی گئی ہے، اس میں وزیر اعظم نواز شریف، ان کی فیملی، چیئرمین نیب اور چیئرمین جو ایف پی آر ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے اس جو پاناما لیکس سے متعلق جو آئینی درخواست ہے، اس میں جو سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے اس آئینی درخواست میں پاناما لیکس سے متعلق کہ پاناما لیکس کا معاملہ انتہائی اہم اور قومی نوعیت کا معاملہ ہے، اسی لیے اس معاملے میں سپریم کورٹ کی جو مداخلت ہے وہ ناگزیر ہے۔ سپریم کورٹ کو پاناما لیکس سے متعلق معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے، کیونکہ قومی دولت جو ہے اس کو لوٹا گیا ہے۔ اس درخواست میں چیئرمین نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ چیئرمین نیب کو حکم دے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی فیملی کی جتنی بھی جائیداد ہے اور جو کہ پاناما لیکس سے متعلق جتنی بھی رقوم ہے اس کے حوالے سے وہ آزاد تحقیقات کے عمل کو یقینی بنائے۔ جبکہ پی ٹی آئی کی اس پٹیشن میں جو چیئرمین ایف پی آر ہے ان کو بھی فریق بناتے ہوئے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین ایف پی آر کو یہ حکم دیا جائے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی فیملی کے جتنے بھی ٹیکس کے معاملات ہیں، جو ریٹرنز ہیں اور جتنا بھی انہوں نے ٹیکس چھپایا یا ٹیکس جمع کروایا اور جتنی بھی ریٹرنز ہیں ٹیکس سے متعلق، وہ بھی منظر عام پر لائی جائیں۔ پی ٹی آئی کی جو یہ آئینی پٹیشن جو ہے یہ 12:30 بجے کے قریب یہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما آئیں گے اور سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے قبل پاناما لیکس سے متعلق جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ایک آئینی درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے اس درخواست کو اس اعتراض کے ساتھ واپس کر دیا گیا تھا کہ کیونکہ جماعت اسلامی نے پاناما لیکس سے متعلق اس سے پہلے کسی فورم سے رجوع نہیں کیا۔ اب اسی اعتراض سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے جو پٹیشن جمع کروائی جائے گی، اس کے جو مندرجات 24 نیوز نے حاصل کیے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ پاناما لیکس کا معاملہ انتہائی اہم کا معاملہ ہے، قومی نوعیت کا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کسی بھی فورم پر جو ہے وہ اس جو پاناما لیکس سے متعلق کوئی آواز یا کوئی پٹیشن دائر نہیں کی، لیکن سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ اس وجہ سے اس پٹیشن کو دائر کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہ قومی نوعیت کا معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے، اسی لیے پی ٹی آئی کو اجازت دی جائے کہ سپریم کورٹ میں فرسٹ ٹائم یہ پٹیشن دائر کرے۔ پی ٹی آئی نے یہ جواز اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں اپنایا ہے کیونکہ اس سے پہلے جماعت اسلامی کی جو پٹیشن تھی وہ اسی بنیاد پر خارج کی گئی تھی کہ واپس کی گئی تھی کہ جماعت اسلامی نے پاناما لیکس سے میں سپریم کورٹ سے پہلے کسی اور فورم سے رجوع نہیں کیا تھا۔ جی شکریہ امجد بھٹی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی جانب سے سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تمام دہشت گردوں کی اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ سزا پانے والوں میں آرمی، پبلک اسکول اور کامرا ایئر بیس پر حملہ کرنے والے دہشت گرد شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے سزائے موت پانے والے دہشت گردوں کی اپیلیں خارج کر دی۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے محفوظ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائے موت کے فیصلوں کے خلاف 16 اپیلیں دائر کی گئی تھیں، جس پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سزا پانے والے دہشت گرد آرمی پبلک اسکول، بنو جیل، کامرا ایئر بیس، پریڈ لائن حملوں اور فوجی قافلوں، تنصیبات اور دیگر حملوں میں ملوث تھے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ سنایا، جس میں قاری زبیر، حیدر علی، قاری ظاہر گل کی اپیلیں خارج کر دیں۔ اس کے علاوہ عتیق الرحمان، تاج محمد، اقسن، محمود فتح، محمد سمیت، شیر عالم، فیض محمد، محمد عربی، محمد غوری اور طاہر محمود کی اپیلیں خارج کی گئی ہیں۔ فضل غفار، سعید الزماں اور سخی محمود کی اپیلیں بھی خارج کر دی گئیں۔ سپریم کورٹ
के लार्जर बेंच ने 20 जून को फैसला महफूज किया था। साने 12 मई केस पर इंसदादे दहशतगर्दी के मुंतजिम जज ने चालान मंजूर कर लिया। दोनों केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 मुंतकिल कर दिए गए। जानते हैं राजा साकिब से। साकिब, डॉक्टर आसिम केस से मुतालिक दरखास्त जमानत की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों खबरें हैं। डॉक्टर आसिम और दीगर जो मुलजमान हैं दहशतगर्दों को उन पर इलाज मुआवजे फराहम करने का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट में आज दरखास्त जमानत की समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर लतीफ खोसा ने दलाइल दिए डॉक्टर आसिम की जानिब से, लेकिन दलाइल जा रही थे कि अदालत ने कहा कि लगता है कि वकला की तैयारी आज मुकम्मल नहीं है। अदालत ने इजहार बरहमी भी किया और केसेस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जबकि दूसरी जानिब 12 मई 2007 जो कराची में सान्या हुआ था, उसके मुतालिक 2 केसेस का चालान अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से पेश किए गए चालान को अदालत ने मंजूर करते हुए केसेस जो है इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत मुंतकिल कर दिए हैं। इन दोनों केसेस की समाअत अब ATC 3 नंबर पे होगी और इस केस में मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर लोग भी नामजद हैं। इन मुल्जमान पर इल्जाम है कि इन्होंने साने 12 मई 2007 को जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। खास तौर पर जो शारा फैसल पर जो हंगामा आई थी उनमें भी इन तमाम मुल्जमान के नाम शामिल हैं। जी ठीक है, शुक्रिया राजा साकिब। लाहौर जिला अदलिया में जजेस के तकर्रुर और तबादले हुए हैं। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने मंजूरी दे दी है। जानते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, किन जजेस को तब्दील किया गया है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट सरदार ताहिर साबर ने जिली अदालतों के 74 जुडिशल अफसरों के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब भर के सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्की देते हुए उनके तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके साथ साथ जो पंजाब भर के 37 जो सिविल जजेस हैं उनको 20 सीनियर सिविल जजेस के ओहदों पर तरक्की देकर उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन जजेस को तरक्की देकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें सीनियर सिविल जज लाहौर अमजद अली बाजवा समेत पंजाब भर के सीनियर सिविल जजेस। शुक्रिया मलिक अशरफ। और अब कुछ बात करते हैं सितमगर महीने की। सियासत में सितंबर की पेशगोई करती गई। सियासी हरीफ हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन जलगार की तैयारियां करने लगे। इमरान खान ने दूसरी जमातों के कायदीन को भी हमनवा बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। हुस्ने इत्तफाक कहें या फिर हुस्ने इत्तेहाद, 3 सितंबर को सियासत के 2 खिलाड़ी हुकूमत से फाइनल मैच के लिए फिर से तैयार हैं। ये तैयारियां क्या सितंबर को हुकूमत के लिए सितमगर बनाएंगी या फिर ये सब चाय की प्याली में तूफान वाला मामला ही होगा? सितंबर में ईद कुर्बा भी है। इस ईद पर किस किस की कुर्बानी होगी, इसे देखने को हर निगाह मुंतज़िर है। पाकिस्तानी सियासत में तूफाने बादो बारां की पेशगोई है। सियासी उफक पर बिजलियों की कड़क साफ दिखाई और सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी सियासत में एक तूफान पैरामा लीग से उठा है। साने मॉडल टाउन को भी हुकूमत के गले का तौक बनाने की तैयारियां हैं। एहतसाब और कसास के नारे किसी का दिल दहला रहे हैं और किसी का जोश बढ़ा रहे हैं। क्या ये महज हुस्ने इत्तफाक है कि सियासत के 2 खिलाड़ी 2 मुख्तलिफ सिमतों से हुकूमत पर जलखार की तैयारियों में लगे हैं? इमरान खान लाहौर में अवामी समंदर के साथ दाखिल होंगे। ताहिरुल कादरी पिंडी में कसास की दुहाई देंगे और दिन होगा 3 सितंबर। पीटीआई के चेयरमैन ने तो इस बार सोलो फ्लाइट का इरादा तर्क कर दिया है। इमरान खान ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात और परवेज इलाही को भी तहरीक में साथ देने के लिए कह दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि तबले जंग बच चुका, सफबंदी जारी है। 3 सितंबर को लाहौर और पिंडी में घमसान का रंग पड़ेगा।
बूरेवाला के सूबाई हल्के PP 232 में ज़िमनी इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे, जानते हैं हाफिज सालेह से। सालेह, बताइएगा जलसे की तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? जी, आज होने वाले जलसा में गगो मंडी के अंदर जो हल्का 232 के अंदर जलसा होने जा रहा है, जहाँ पे इमरान खान जो है वो आज एक मजमा आम से खिताब करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि इंतजामात के हवाले से अभी तक जो है वो इंतजामात नामुकम्मल हैं और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। आप फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ लेयर्स दिए गए हैं और यहाँ पे कोई इंतजामात नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तकरीबन पंडाल के अंदर तकरीबन 5000 के करीब जो है वो लोगों के बैठने की गुंजाइश है और उसके साथ साथ खुली जगह भी है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये खुला मैदान है, खेलने का मैदान है, जिसके चारों अतराफ किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी किस्म के कोई फुल प्रूफ इंतजाम नहीं किए गए। अभी तक तमाम के तमाम जलसे के इंतजाम अधूरे हैं। जी शुक्रिया हाफिज सालेह। PTI का वफ़द चौधरी सरवर की सरबराही में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा है। आपको बताएं कि 3 सितंबर को दोनों पार्टीज की तैयारियां हैं हुकूमत को टफ टाइम देने की और हुकूमत के खिलाफ यलगार की, और इसी सिलसिले में अहम मुलाकात हो रही है चौधरी सरवर की सरबराही में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से। सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को असासों की तफसीलात जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। जानते हैं बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में, अब तक कितनी जमातों ने अपनी तफसीलात जमा कराई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज जो है वो 29 अगस्त है और 29 अगस्त हर साल जितनी भी सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं, कुल जिनकी तादाद 370 है, उनकी आज अपने फंड्स की, अखराजात की, गोशवारों की तफसीलात जमा कराने का आज आखिरी दिन है। जराये का ये कहना है कि अब तक कुल 80 जमातों ने जो है वो अपने असाजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई हैं। कई साल से ये भी प्रैक्टिस रही है कि आधे से ज्यादा जो जमातें हैं, यानी 170 से ज्यादा जो जमातें हैं, वो अपने जो है वो असाजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के पास जमा नहीं करवाती, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाता। शुक्रिया बेनज़ीर मेहदी। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। CPEC मंसूबों की तकमील से मुल्क में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने यह भी इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान और चीन 2018 में खला में मुश्तरका सैटेलाइट भेजेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने CPEC समिट एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह के बाद एक्सपो के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद कारोबारी मौके की तलाश और सरमायाकारों को राग़िब करना है। CPEC offers us an opportunity to integrate this region into a giant economic market of 3 billion people, almost half of the world's population. वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि चीन ने दीगर उमूर के साथ साथ इक़्तिसादी मुश्किल में भी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। That by working together we can bring peace and stability in the region through economic development for our people. नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तिजारत की दुनिया में वापस आ गया है। इक़्तिसादी राहदारी चीन के साथ मजबूत राब्ते का बाइस बनेगी। तवानाई के बेशतर मंसूबे 2018 में मुकम्मल हो जाएंगे। राहदारी के मगरबी रूट पर रवां साल काम शुरू हो जाएगा। CPEC कॉन्फ्रेंस में चीन के निजी शोबे की 100 से ज़ायद कंपनियों के CEOs समेत मकामी और गैर मुल्की नुमाइंदे और सरमायाकार शिरकत कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुख्तसर दौरे के बाद सऊदी अरब रवाना हो गए। दौरे के दौरान सऊदी वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकातें की। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर आला सिविल और फौजी हुकाम ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के सरबराह, वफाकी वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी
रही है। सऊदी अरब की सलामती को कोई खतरा लाहक हुआ तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत होती जा रही है। उन्होंने अपनी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम वजीर आज़म नवाज शरीफ तक पहुँचाया। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात की। इस दौरान इलाकाई सिक्योरिटी, खास तौर पर मशरक़े वुस्ता के मामलात ज़ेर बहस आए। मुलाकात में दिफाई और बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर दिफा मुख्तसर दौरे के बाद वतन रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ ने उन्हें रुखसत किया। सूबाई वजीर मंजूर वसान का कहना है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 5 नहीं तो 3 धड़ों में बढ़ता देख रहे हैं। उनका कहना था कि MQM आइंदा इलेक्शन में कम सीटें हासिल करेगी। अल्ताफ हुसैन का मुस्तकबिल लंदन में ही है। वो कराची स्मॉल इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये है कि हमारा अल्ताफ भाई लंदन में ही रहेगा। यहाँ का मुस्तकबिल जो आप देख रहे हो, MQM धड़ों में बढ़ जाएगी, सीटें कम लेंगी। दूसरे जो पार्टी में अहम पार्टी के रहनुमा हैं और वो जगह यकीनन लेंगे, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि बहुत सी पार्टियाँ इन्वॉल्व होंगी। और अब बात करते हैं MQM की। अल्ताफ हुसैन से राबता तोड़ने के बावजूद MQM पर सख्तियां कम ना हो सकी। दफातर को मिसमार और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं जिले हैदर। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक रेलवे कॉलोनी, आराम बाग और खारादर में MQM के दफातर मिसमार कर दिए गए हैं। अब तक 13 दफातर गिराए जा चुके हैं, जबकि 218 ऑफिस सील भी किए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि गिराए जाने वाले तमाम दफातर सरकारी अमलाक पर तामीर किए गए थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कराची के जिला वेस्ट में 37, ईस्ट में 35, कोरंगी में 38 दफ्तर को सील किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जिला वस्ती में 68, जनूबी में 25, मलीर में 15 दफातर को सील किया जा चुका है। पाक कॉलोनी में एक मकान में कायम कारखाने को भी MQM का यूनिट ऑफिस समझकर सील कर दिया गया। कराची में ही नहीं, सिंध भर में भी MQM के सेक्टर और यूनिट ऑफिस सील और गिराए जा चुके हैं, जबकि कारकुनों और जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। मुत्तहिदा ज़राए के मुताबिक कराची में 3000 से ज़ायद दफातर शामिल हैं, जिनमें यूनिट, सेक्टर और ज़ेली तंजीमों के अलावा मुत्तहिदा के रजाकारों के दफातर भी शामिल हैं, जिनमें से अक्सर को सील कर दिया गया है और कुछ को मिसमार किया जा चुका है। जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। महकमे तालीम सिंध के मुलाजमीन सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने चौथे रोज भी एहतजाज पर हैं। मुलाजमीन ने आंखों पर स्याह पट्टियां बांधी हुई हैं। जानते हैं आजाद नेठियों से। आजाद, क्या मुतालबात हैं महकमे तालीम के मुलाजमीन के? जी बिल्कुल, महकमा तालीम कंबर शहजाद कोट से ताल्लुक रखने वाले जो मुलाजमीन का एहतजाज जो आज चौथे रोज भी सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने जारी है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक बार फिर आज इस मामले का नोटिस दिया था, लेकिन उसदा का 3 रुकनी वफद जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पहुंचा तो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उनने अहकाम जारी किया अपने DS स्टाफ को इनसे मुलाकात करके इनके मामला सुने जाएं। लेकिन जो मामला हल नहीं हुए तो इन्होंने एक बार फिर जो है अपना एहतजाज शुरू कर दिया है। सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जुमेरात के रोज वो खुदसुजी करेंगे जब तक इनके मुतालबात नहीं माने। ठीक है, शुक्रिया आजाद नेहरियो। खैबर एजेंसी की तहसील जमरूद में मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जमरूद अंधेरे में डूब गया। बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस तलबा और कॉलेज स्टाफ को अपने उमूर की अंजाम दही में मुश्किलात का सामना है। जानते हैं गौहर महसूद से। गौहर, बताइएगा बिजली न होने से तलबा और स्टाफ को किन मुश्किलात का सामना है और कितने घंटे से लोड शेडिंग जारी है? जी बिल्कुल महविश, ये खबर एजेंसी की तहसील जमरूद में यहाँ पर जो पेशावर के बिल्कुल करीब है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज है जिसमें 24 घंटों में तकरीबन कोई 4-5 घंटे बिजली होती है, बाकी बिजली नहीं होती है। वहाँ पर जो कंप्यूटर लैब और दिगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से वहाँ पर जो चीज़ें तरतीब दी गई हैं उनमें से कोई एक भी चीज़ काबिल अमल नहीं लाया जा सकता है लोड शेडिंग ज़्यादा होने की वजह से। और यहाँ पर जो असातिज़ा या जो स्टाफ है दूर दूर से यहाँ पर जो तैनात किया गया है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कई घंटों से जब यहाँ पर लोड शेडिंग होती है उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है। उसकी वजह से उनको क्लासेस में भी काफ़ी दुश्वारियां सामने आती है और क्लासेस। शुक्रिया गौहर महसूद। और अब बात करते हैं मकबूजा वादी की। क्या पहले सितम कम थे? मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने अब लूट मार भी शुरू कर दी। अली गिलानी का कहना है कि भारत ने अवामी तहरीक को कुचलने के लिए तमाम असलाह खानों के धाने खोल दिए हैं।
یہ ہے مقبوضہ کشمیر 52 روز سے ٹرانسپورٹ کا پہیا جیم ہے. تعلیمی ادارے تو کیا کاروباری مراکز اور سرکاری اداروں کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں. اخبارات پر تو پابندی ہے. اب کٹ پتلی حکومت نے سرکاری ریڈیو بھی بند کر دیا. اشیاء خور و نوش کی سپلائی بھی بند ہے. لاکھوں کشمیری گھروں میں محصور ہو چکے ہیں. بھارتی فوج اب ایک نئے روپ میں سامنے آ گئی. وہ روپ ہے چوروں کا، ڈکیتوں کا. وحشی درندے کشمیریوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر چکے. اب انہوں نے گھروں میں گھس کر لوٹ مار شروع کر دی. مزاحمت پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بدترین تشدد کا شکار بنانے والے خیریت بھی خود دریافت کرنے لگے. یہ ہے بھارتی حکام کا کشمیریوں پر بھونڈا مذاق. بھارتی میڈیا کے مطابق محبوبہ مفتی ہسپتال میں کشمیریوں کی عادت کے لیے پہنچ گئے. رات گئے میر وائز عمر فاروق کو چشمہ سب جیل منتقل کر دیا گیا. علی گیلانی کا کہنا ہے کہ بھارت ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے. دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی نے پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کو مختلف ممالک کے دوروں پر بھیجنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خوشائند قرار دیا ہے. بلیٹن میں شامل کریں گے اور بھی خبریں، لیکن اس بریک کے بعد ارادہ کوئی نہیں ہے. ارادہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی حقوق کے بارے میں جو اختیارات اور جو اس کی توسیع کی ہے پچھلے 10 سال میں، وہ اتنے پھیل گئے ہیں اور اس حد تک وہ آگے بڑھ گئے ہیں. بالخصوص اگر آپ کو یوسف رضا گیلانی صاحب والا کیس یاد ہو کہ اب سپریم کورٹ کا منصب یہ ہے کہ جب بھی بنیادی حقوق کی بات ہوگی اور وہ سوال ایسا ہوگا جس میں پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے تو سپریم کورٹ وہ سننے کی مجاز ہوگی. بلکہ 1-2 فیصلے تو انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ سنیں تو ہم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے. جو پٹیشن ہم نے دائر کی ہے، ہمارا خیال، اور یہ پٹیشن میں کئی لوگ شامل ہیں، اس کا پہلا ڈرافٹ جو تھا وہ عرفان قادر صاحب نے بنایا تھا، اس میں میں نے کی تھی، پھر حامد خان صاحب نے بھی اس میں کیا اور اویس صاحب نے بھی اس میں کیا. ہم سمجھتے ہیں ہماری پٹیشن جماعت اسلامی کی پٹیشن سے بہت مختلف ہے، اور میں نے ایک کورنگ نوٹ بھی دیا ہے رجسٹرار صاحب کے لیے، کیونکہ رجسٹرار صاحب کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی وہ کہہ دیں کہ یہ پٹیشن یہاں لائی نہیں کرتی. اس فیصلے کی اپیل چیمبر میں جج صاحب کے پاس ہوتی ہے. لیکن میری ناچیز رائے میں اس پٹیشن میں کوئی ایسا سکم باقی نہیں رہا کہ یہ پٹیشن جج صاحبان کے سامنے پیش نہ کی جائے، چیف صاحب کے سامنے پیش نہ کی جائے، اور وہ فیصلہ کریں کہ یہ کب سنیں گے. مجھے احساس ہے گرمی ہے. اس میں میاں صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کی نااہلی، ان کے داماد کی نااہلی، اسحاق ڈار صاحب کی نااہلی کے علاوہ اور بہت سی درخواستیں ہیں اس میں کہ کریں. اس میں چیئرمین نیب کے خلاف 209 کی کارروائی، آرٹیکل 209 کی کارروائی کرنا ہے. اس میں جو ہماری FBR ہے جس نے کوئی کام نہیں کیا اس معاملے میں، اس کو تحقیق کرنے کا بھی حکم ماننا ہے. اس لیے یہ صرف میاں صاحبان کی نااہلی، میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بارے میں نہیں ہے، اس میں زیادہ ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں اندر سے ہوا ہوں، میں واپس پھر آؤں گا. باچے کمپیٹنٹ اتھارٹی کا جو ایپیکس سپریم کورٹ ہے، اٹ ریمینز دی الٹیمیٹ اینڈ کمپیٹنٹ اتھارٹی. اگر آپ کو ججز کیس، الجہاد ٹرسٹ کیس یاد ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کیس میں ہائی کورٹوں میں بھی پٹیشنیں تھیں. سپریم کورٹ نے ساری پٹیشنیں اٹھا لی اور نے کہا ہم فیصلہ کریں گے. جب عدالت عظمیٰ کے سامنے آپ آتے ہیں تو باقی کوئی ادارہ سامنے نہیں رہتا ہے. عدالت عظمیٰ دیکھیے، انہوں نے کہا الٹرنیٹیو فورم استعمال نہیں کیا. جب بنیادی حقوق کی بات آتی ہے
तो उसमें अल्टरनेटिव रेमेडी का इशू नहीं आता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में कहा है कि आपका इख्तियार है, आप फैसला करें कि आप आर्टिकल 199 में आना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहते हैं। हमारे पास अगर आप आना चाहते हैं तो उसके सिर्फ 2 असूल हैं, बुनियादी हकूक़ की बात होनी चाहिए, और हम समझते हैं इस पिटिशन में पूरी कौम के बुनियादी हकूक़ शामिल हैं, और नंबर 2 सवाल ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो। ये 20 करोड़ लोगों का सवाल है जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने, फैसला क्या करते हैं अदालत है, वो उसका हक है, जो भी वो फैसला करे। हमारी सिर्फ इस हद तक इमरान खान नियाज़ी वर्सेस नवाज शरीफ है या इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ? मेरे चेयरमैन पीटीआई है, अगर उनका नाम इमरान खान नियाज़ी है तो इमरान खान नियाज़ी है, अगर उनका नाम इमरान खान, आपने क्या लफ्ज़ और किया था, अहमद खान है, तो वो है, दे शुड बी नो डाउट अबाउट हु इमरान खान इज़। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपकी दरख्वास्त में कोई हुक्म नहीं है, इतने दिनों से ये दरख्वास्त तैयार की जा रही है, अभी ऐसी क्या तरमीम रहती है जो आपने कर रहे हैं? उसका एक कागज़ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, वो सीधा करने चला। जी मेरे बेटे, ये मेरा बेटा, याद रखिए मैंने इसे पढ़ाया हुआ है, ये सफ़ेद दाढ़ी लगा के समझता बड़ा मोतबर हो गया। अच्छा, ये सफ़ेद रंग था अपनी दाढ़ी। कहीं केपी के असेंबली की रेजोल्यूशन हम साथ में हैं, जी तो जी, वो रेजोल्यूशन पास हो गई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हो सकी? जब आएगी, देखिए जब आप पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, देखिए आप, मुझे लगता है इस पे हंस रहे हैं कि मुझ पे हंस रहे हैं, हंस रहे हैं तो ये मेरा बेटा है, उस पे हंसने की इजाज़त नहीं है, जो शागिर्द होता है वो बेटा हो जाता है। देखिए जब भी आप पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में करते हैं और अदालत उसका जायज़ा लेती है, उसके बाद आप कागज़ लगाते रहते हैं जो भी आपकी नज़र में आते हैं। अभी एक शैमरॉक कंपनी है, उसके बारे में आप हंसे क्यों? देखिए आप हंसा करें, आप हंसे हुए अच्छे लगते हैं। आप देख लें, मैं वापस आता हूँ, रेजोल्यूशन भी पास हो जाए, वो भी आता है, मैं आपके सामने, मुझे एहसास है कि गर्मी है, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मेकअप मेरा पिघल जाएगा है, मैं अंदर अभी आते हैं। अरे बाबा खबरनाक क्या, मैं टेलीविजन पे आपके सामने बिल्कुल वही हूँ जो दफ्तर में होता हूँ और जो अदालत में होता हूँ, मुझे बनने की जा। थैंक यू। अभी आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा सिक्योरिटी के दरखास्त देने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जानते हैं गयासुद्दीन से। गयास, क्या मौक़िफ़ है फैसल वाउडा का इस बारे में? देखिए, पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा आज सिंध हाई कोर्ट पहुंचे हैं और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फैसल वावडा जो कि नैब ने नोटिस जारी किया था और नैब दफ्तर में अपना बयान रिकॉर्ड कराने आए थे, जिसके बाद उनकी गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या रहनुमा हुआ था। इस वाक़े के बाद फैसल वावडा आज हाई कोर्ट आए हैं कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए और इस मामले में वो दरख्वास्त जमा कराएंगे। ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। फैसल वावडा भी अदालत में मौजूद हैं, अगर वो दरख्वास्त जमा कराते हैं तो यकीनन उस दरख्वास्त की तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। जी शुक्रिया गयासुद्दीन। फैसलाबाद के बटाला कॉलोनी में नौजवानों के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे वकास बेग से। वकास, क्या कहना है लवाहिकीन का? 24 अगस्त को बटाला कॉलोनी के इलाके में फायरिंग के नतीजे में ससुर और दामाद जो हैं वो जाँ भाग हुए थे। अब जो दामाद था शान नामी लड़का, इसके अहले खाना जो है उसकी मैयत जिला कौंसिल चौक पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ससुरालियों की जानिब से जो है हम पर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए, लेकिन हमारा बेटा जो है वो कत्ल कर दिया गया। मैयत सड़क पर होने के बावजूद जो है पुलिस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, बल्कि पुलिस की हठधर्मी इस कदर है कि जाँ भाग होने वाले जिस शख्स की लाश इस वक्त जिला कौंसिल चौक में मौजूद है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसके लवाहिकीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब अहले इलाका जो है, अहले खाना जो है वो सरापा एहतजाज है कि मकतूल शान के कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए और मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इनका ये कहना है कि मुद्दई पार्टी जो है उसकी जानिब से हम पर मुकदमा दर्ज करवाया गया, जबकि हमारे बेटे के कत्ल हो जाने के बावजूद जो है पुलिस ने किसी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया। हमारी ताहाल नहीं सुनी जा रही। इस वक्त ये सरापा एहतजाज है। इनका यही कहना है कि जब तक हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता, शान के कातलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। जी शुक्रिया वकास बेग।
लाहौर के इलाके नसीराबाद से एक माह कबल अगवा होने वाली लड़की मुस्कान को बाजियाब ना कराया जा सका। मुस्कान की वालिदा कौसर और अहले इलाका इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पेश हो गए हैं। जानते हैं शाहीन अतीक से। यहाँ पर लाहौर में मैं एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन की अदालत के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ एक लड़की 13 साल की है जिसका नाम मुस्कान है। उसको इमरान समेत दीगर मुलजमान हैं, उन्होंने उसको अगवा कर लिया। 1 माह का अरसा गुजर चुका है, वो उस लड़की का कोई पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ है। हम ऊपर थे, बच्ची नीचे उतरी या नीचे से ही गायब हो गई। हम जहाँ पे अपना इंसाफ के लिए आए हैं ताकि हमें बच्ची मिल जाए। अदालत में सारी सूरत हाल जो है बताई गई, जिस पर अदालत ने SHO नसीराबाद जो है उसको शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही SP जो मुतलका है उनको कहा है कि इस वाक़े की इंक्वायरी की जाए क्योंकि ये संगीन नौइयत का मामला है। यहाँ पर जो है वो आज अदालत में तब कार्रवाई हुई, जिस पर कार्रवाई जो है वो 6 सितंबर तक जो है मुलतवी कर दी गई है। ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्तान में मवेशी मंडी के रौनकों में इजाफा हो गया है। मंडी में भारी भरकम और सेहतमंद जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मंडी की रौनकों से आगाह कर रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन बताएगा मुल्तान की मंडी में सबसे महंगा और सेहतमंद जानवर कौन सा है? ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्तान में भी मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा हो गया है। मोहसिन उल मुल्क वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहसिन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आप मुल्तान की एक बकरा मंडी में मौजूद हैं, ये बताइएगा यहां पर कैसी रौनकें हैं और सबसे महंगा और सेहतमंद जानवर कौन सा है? जी बिल्कुल, मवेशी मंडी में अगर बात की जाए जानवरों की तो छोटा जानवर इस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पर है क्योंकि अर्ली डेज हैं, मंडी के सजी हुई है जो, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जितने भी बकरे आ रहे हैं वो बलोचिस्तान से अभी तक लाए जा रहे हैं। और बलोचिस्तान का बकरा पहाड़ी बकरा कहलाता है और पहाड़ी बकरे की एक तो इसका कद बड़ा होता है और दूसरा वजन में ज़्यादा होता है। तकरीबन 60 किलो तक का वजन का यहाँ पर बकरा जो है दस्तयाब है। न सिर्फ मुल्तान के शहरी यहाँ पर मंडी का रुख कर रहे हैं बल्कि दूर दराज इलाकों की से आए हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग बकरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। और बकरों की शान ऐसी है कि यहाँ पर मुख्तलिफ नामों के बकरे हैं जो कि 1.5 लीटर से एक बकरा हमने देखा है जिसका वजन 60 किलो है। यहाँ पर मुनफरिद बकरा कहलाया जा रहा है इस मार्केट का और लोग भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। 1 लाख रुपया उसकी कीमत है। इसके साथ 12 सिंगा हिरन और जो बागड़ बिला, यहाँ पर 3-4 ऐसे बकरे हैं जो कि इस मंडी की रौनक को बढ़ाए हुए हैं। मोहसिन मुल्क, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की मंडियों की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं अबू बकर से। अबू बकर, शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, ईद उल अजहा के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर के 7 अहम मुकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे सफाई के इंतजाम और कोंगो वायरस से निपटने के लिए भी काफ़ी इंतजाम बेहतर किए गए हैं। जबकि व्यापारियों का कहना है कि उनको सिर्फ जो चारा और पट्टे हैं उस हवाले से उनको महंगे दामों मिलने की शिकायत की है, लेकिन शेड्स और पानी की फराहमी, पार्किंग समेत दीगर जो उनको सहूलियत मुयसर की गई हैं। लाहौर डिवीजन कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से यहाँ पे तमाम जो इंतजामात हैं वो अच्छे देखने में नजर आ रहे हैं। मेरे जहन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मवेशी हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें बैल, ऊंट, छतरे, बकरे और दुम्बे यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अभी शहरियों का तो रश तसल्ली बख्श है। शुक्रिया अबू बकर और मोहसिन उल मुल्क। और अब एक नजर डालते हैं कारोबारी उतार चढ़ाव पर। Segment is brought to you in association with Habib Metro. Stay ahead. आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। फी बैरल कीमत दोबारा $45 की सतह पर आ गई। एशियन मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान खाम तेल की कीमत में 1.7% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी खाम तेल WTI के मुस्तकबिल के सौदे $40.80 फी बैरल पर हुए। बॉनेट खाम तेल की फी बैरल कीमत $49 की सतह पर आ गई, जबकि ओपेक ममालिक की तेल की कीमत $45.28 रही। इराक में तेल की पैदावार में इजाफे की रिपोर्ट कीमतों में मजीद कमी का बायस बनी। गुज़िश्ता हफ्ते खाम तेल की फी बैरल कीमत $51 से तजावुज कर गई थी।
फिल वक्त इतना ही। 24 घंटे बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए 24newsHD.tv। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हेडलाइन।